Here, there is refraction on the basis of wave theory. We will verify the law of refraction on the basis of the Huygens principle. Here, suppose a plane wave front incident on a refracting surface. Suppose a plane wave front incident on a refracting surface. 2 point sources A and B are taken on this wave front. Light travels from A to C in time t. AC is equal to V1t. If V1 is the velocity in the first medium and the light travels from B in the second medium with velocity V2, if V then in time t distance travel will be V2t if B is taken as a center and V2t as the radius, then an arc is drawn of radius V2t, and if a tangent is drawn from C on this arc, the CD will be the refracted wave front. Now in triangle ABC, sin I is equal to AC upon BC, and in triangle BDC, sin R is, that is BD upon BC. Therefore, sin I upon sin R, it is equal to AC upon BC upon BD upon BC. Here it is equal to AC upon BD. AC is equal to V1t and BD is equal to V2t. So it is V1 upon V2. It means sin I upon sin R. According to the Snell's law, sin I upon sin R, it is equal to mu, it is equal to V1 upon V2. This is Snell's law. Thus the Snell's law is verified on the basis of Huygens principle. And here incident ray, refracted ray and the normal all lie in the same plane of interface, and thus this is the Snell's law. And incident ray, refracted ray and the normal all lie in same plane of interface. Interface means which divides the two medium, and thus the law of refraction is verified on the basis of wave theory. Law of refraction is verified on the basis of wave theory. वेव थियरी के बेस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने वेरीफाई किया, स्नेल्स लॉ वेरीफाई हुआ, हमें एक रिलेशन भी यहाँ मिला, sin I upon sin R is equal to V1 upon V2, and incident ray, refracted ray and the normal all lie in same plane of interface. This is the refraction on the basis of wave theory. Next, the behavior of the prism, behavior of the convex lens. What behavior is shown by the prism? So behavior of prism we will see.
behavior of prism. It means a plane wave front here, A, B, C. Here it is a prism. If a plane wave front incident on it, अगर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है यहाँ पर ऐसे, then the ray travels from suppose 2 point source here is taken, here let it is the P, B, it is P dash C. When a plane wave front incident on a prism, the refracted wave front is also the plane wave front. अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट किसी प्रिज्म के सरफेस पे गिरता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द वेव फ्रंट इज ऑलवेज प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट, it is plane wave. It is first plane wave front. The behavior of convex lens. Here convex lens. Here you see if a plane wave front incident on the surface of plane wave front support AB, incident on a convex surface after refraction, here it is the rare medium, so larger distance will be traveled. Here also the rare medium, larger distance will be traveled. In time t, it is found that this distance will be smaller. So after time t, it is found that this distance larger, this distance larger. So after time t, if it is AB, A dash, B dash, this is the convex, this is the spherical wave front. One mark में पूछा जाता है कि if a plane wave front incident on a convex lens, then what will be the nature of the refracted wave front? That will be spherical wave front. Spherical wave front. Here and the next, what will be the nature for the behavior of concave mirror? Here, if a plane wave front incident here, this is the reflector, it is also reflected. It also reflected, and it is found that at a particular time t, the reflected wave front, also the spherical wave front, ध्यान रखना कि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन ए concave mirror, then what will be the nature of the reflected wave front? That will be spherical. And when it incident on a convex lens after refraction, the refracted wave front is always spherical. For the prism, it is always plane wave front. This is the behavior of the prism, lens and the
mirror. After this, we will study the interference. Before interference, we will study the superposition. What is the superposition? Superposition. Superposition होता क्या है? If a number of waves travel in a medium and they superimpose on each other, then the resultant displacement at any point is equal to the vector sum of the displacement due to the individual waves. If a number of waves travel in a medium, no doubt, but it is superposition. If a number of waves travel in a medium, if they superimpose on each other, the resultant. Sir, आराम से. If a number of waves travel. If a number of waves travel in a medium, the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves. Vector sum of the displacements due to the individual waves. If y1, yn be the displacements of n waves, be the displacements of n waves, be displacements of n waves. Therefore, the resultant displacement y is equal to y1 plus y2 y1. And if suppose two waves both are in same phase, the resultant displacement is equal to like this. अगर दो वेव हैं सेम फेज में हैं तो दे विल एडेड अप व्हेन again in the same phase in crest form, in the trough form, resultant wave is like this. And when two waves are in opposite phase, then the destructively they will meet and the resultant will be like this only. Both will neutralize to each other, because this concept will be used in the interference. So in interference we have to study the concept of this superposition. So this definition will be useful in the superposition, in the interference of waves. We will study the interference. Interference. What is interference? सर जब दो लाइट मिलती है तो सर उसकी वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंज का एक पैटर्न बनने लग जाता है. When they meet, what is the how will you define the interference? What is the interference? पाइबा में पूछा जाता है कि have you heard the name interference? तो क्या डिफाइन करोगे? सर जब दो लाइटें जब चलती हैं तो अगर मीट करती हैं तो सर क्या कंडीशन होती है? सर सेम फेज में होनी चाहिए, इन फेज. हाँ, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. इन फेज. हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो और कांस्टेंट फेज सेम डिफरेंस. फ्रीक्वेंसी, सेम वेव नंबर. Travel in the same direction. यस सर. If they superimpose on each other, then some have the maximum intensity, some have the minimum intensity. When the maximum intensity occurs, that is known as the constructive interference, or the minimum, so that is the destructive interference. Note down the definition. When two light waves of same frequency, zero or constant phase difference,
end phase difference, travel in the same direction, if they superimpose on each other, then somewhere the maximum intensity and somewhere the minimum intensity. This phenomenon is known as the interference of light. This phenomenon is known as the interference of light. Maximum interference or minimum? Somewhere the maximum intensity, Okay. somewhere the minimum intensity. This phenomenon is known as the interference of light. When maximum intensity occurs, this is known as the constructive interference, and when the minimum intensity occurs, that is known as the destructive interference. इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस पर प्रोजेक्ट दिया गया लिखने को, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कैपेसिटर, 9 टॉपिक्स दिए गए। TIR हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 9 टॉपिक्स दिए गए हैं, किसी एक पे लिख लेना, एटलीस्ट 15 पेज। क्लियर? प्रिंटेड भी, हैंड रिटन जैसे भी। हाँ, 11 पेज। ठीक है, एग्जामिनर विल डिसाइड नंबर काट के कितना पेज लिखना है। Here you see Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. Here you see how the experimentally Thomas Young shown this experiment. Here you see उसने एक स्लिट लिया, एक सोर्स यहाँ पे रख दिया और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक सोर्स से उसने 2 सोर्स बना दिए। यहाँ से जो लाइट का वेव फ्रंट चला ऐसे निकलते हुए यहाँ आकर के वेव फ्रंट यहाँ पे 2 पार्ट में बट गया। एक सोर्स ये S1 और S2 हो गया। ध्यान रखो, उसने क्या किया, वेव फ्रंट चलना शुरू हुआ, एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे रख दिया गया। यही प्लेन वेव फ्रंट की crest or trough के फॉर्म में आगे बढ़ा। It is found that here suppose when the crest, this wave front is divided in 2 parts. एक सोर्स रखा गया, एक सोर्स से जो लाइट निकली 2 सोर्स में चेंज हो गए और यहाँ पे ये जो है उसने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि एक स्क्रीन ले लिया 2 मीटर की डिस्टेंस पर और दिखाया उसने कि इस स्क्रीन पर इस दोनों सोर्स के कारण ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। ये हमारे पास उसने देखा कि जहां पर एक क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं, इस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनती है। ध्यान दें, डार्क फ्रिंज। और जिस पॉइंट पर क्रेस्ट या ट्रफ मिलते हैं, जैसे इस पॉइंट पर, ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ दोनों पे क्रेस्ट जहां मिले या दोनों पे ट्रफ मिलते हैं, इस
पॉइंट पर ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस। तो ये ब्राइट डार्क ऐसे ही लगातार, तो उसने देखा, एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया कि जहाँ पर क्रेस्ट या ट्रफ मिलते हैं वहाँ पर ब्राइट, और जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ मिलते हैं वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनती है। तो यहाँ पे देखना डार्क बन गया। ऐसे ही अगर हम दूसरा ले लें, एक डार्क बन जाता है। यहाँ पे देखो क्रेस्ट मिल रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ब्राइट बन जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसी तरह से उसने एक्सपेरिमेंटली करके शो किया कि जहाँ पे क्रेस्ट ब्राइट डार्क, उसने करके देखा कि डार्क, ऐसे ही ब्राइट डार्क, अल्टरनेट क्रम में देखा गया, ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट, इसी तरह से ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती चली जाती हैं। और एक्सपेरिमेंटली फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट लाइट वेव एक सोर्स से दो सोर्स बनाया गया। दो सोर्स की जो वेव होती है कोहेरेंट सोर्स होती है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो इंडिपेंडेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, ध्यान में रखना। पूछा जाता है व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मीन्स टू सोर्सेस will be coherent when they will have the सेम ओरिजिन, same frequency, zero or constant phase difference, ये ध्यान में रखना। और two independent source can never be coherent। पूछा जाता है कि why the interference से जो भी प्रोजेक्ट लिखेंगे उनसे पूछा जाएगा why the two coherent source can never be, two independent source can never be coherent। दो कैंडल जला दो, चाहे सेम डायमीटर का हो, सब कुछ हो, लेकिन वो कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। why they can never be coherent, कभी कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटेंसिटी कभी सेम नहीं हो सकती। Because some light is emitted not from the bulk matter, light is emitted from the atomic transition state। जब भी लाइट इमिट होती है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है, तभी लाइट इमिट होती है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स अगर हैं तो दोनों में लाइट का जो इमिशन होगा, कुछ में लाइट अपने ग्राउंड स्टेट में रहेगी एटम्स का, कुछ में मिडिल स्टेट में रहेगा। तो दोनों में इंडिपेंडेंट, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कभी सेम नहीं हो सकता। बिकॉज द ट्रांजिशन पीरियड विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एटम्स। दो क्लास के बच्चे अगर सेम फेज में नहीं रह सकते, दो क्लास के बच्चे दोनों क्लास सेम फेज में हो जाए, तो कभी कोई बच्चा कोई हरकत करे, कोई बच्चा कोई हरकत कर सकता, दोनों सेम फेज में नहीं रह सकते। इसी तरह से दो क्लास के बच्चे एटम माने जा सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन बी टेकन एज ए, सबकी डिफरेंट एक्टिविटीज। इसी तरह से दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस अगर हैं तो दे आर मेड ऑफ द मिलियंस ऑफ एटम्स, एंड डिफरेंट एटम्स आर इन द डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स during the emission of light, so they can never be in the same phase, वे कभी सेम फेज में नहीं हो सकते। and this is the reason two independent sources can never be the coherent। तो ध्यान में रखना। इसीलिए यंग्स ने इंटरफेरेंस के लिए एक सोर्स से दो सोर्स बनाया। अगर यही सोर्स से लाइट इमिट हो रही है तो यह सेम फेज में होना, तो इसलिए इसने, यही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसको 1 मिलीमीटर का रखा गया, ऐसा घर पे भी किया जा सकता, लेकिन उसके लिए मोनोक्रोमैटिक सोर्स होना चाहिए। अगर मोनोक्रोमैटिक नहीं है तो 7 कलर्स ओवरलैप करेंगे, तो क्लियर ब्राइट और डार्क जो दिख रहा है, क्लियर ब्राइट डार्क नहीं दिखेगा। इंटरफेरेंस कहाँ दिखता है? इंटरफेरेंस का कोई एग्जाम्पल? सो बबल पे, सो आयली सरफेस अगर है, रेनबो भी हो गया। नहीं, रेनबो इन द
इंटरफेरेंस नहीं है, डिस्पर्सन। सर थिन फिल्म में हाँ, अगर आयली सरफेस है, पानी पर अगर आयल डाल दिया जाए, उस पर कलर्ड फ्रिंजेज बनती है ना, दैट इज द इंटरफेरेंस। और अगर सोप बबल है, सोप बबल पर कलर्ड 7 कलर दिखता है ना, दैट इज द इंटरफेरेंस। 7 कलर्स व्हाइट लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। डार्क ब्राइट वहाँ भी बनता है, बट द 7 कलर्स ओवरलैप। So, clear, bright, dark can never be differentiated. But here, for monochromatic light, अगर same phase में है तो bright. When they meet in opposite phase, that will be the dark. So, for the monochromatic light, this is the reason coherent sources are taken. Coherent होना चाहिए और monochromatic. Then clear, bright and dark can be seen on the screen. So here, this is the Young's double slit experiment में कोहेरेंट सोर्स लिया गया था और ब्राइट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक लिया गया था। इनका इसको 1 मिलीमीटर रखा गया था, ध्यान रखना। इसकी जो विड्थ थी स्लिट की 1 मिलीमीटर। इस ये जो S1 S2 है 0.3 मिलीमीटर लेकर के किया था और इस डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस 2 मीटर और ये डिस्टेंस इनके बीच के S1 S2 2 मिलीमीटर। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो करके उसने देखा कि क्लियर, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड। क्या सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए। सेम फेज में होने के लिए अगर वो क्लियर, ब्राइट और डार्क बनने के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। अगर क्लियर, ब्राइट, डार्क नहीं बनेगा ना क्लियर, ब्राइट, डार्क होने का मतलब सुनो, जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी जो होती है आई, ये जो है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कोहेरेंट होगी जब अगर दोनों सेम एम्पलीट्यूड और उसमें सेम फेज में होंगे। A1 माइनस A2 अगर दोनों इक्वल हो गया तब तो 0 हो गया। और दोनों अगर अनइक्वल है तो मिनिमम में भी कुछ न कुछ इंटेंसिटी बनी रहे। अगर दोनों का इंटरफेरेंस तो होना इंटर नहीं तो इसमें क्लियर, ब्राइट, डार्क, जो डार्क फ्रिंज कभी नहीं दिखे। अगर कोहेरेंट नहीं पाओगे इंटरफेरेंस तो हमेशा होता। नहीं, कोहेरेंट इसलिए जरूरी है कि क्लियर, ब्राइट, डार्क नहीं दिखेगा। जैसे क्लियर, ब्राइट, डार्क हमें नहीं दिखता यहाँ पे, जैसे 7 कलर्स फ्रिंजेज है ना, इंटरफेरेंस का एग्जांपल है ना, 7 कलर्स ओवरलैप हो जाता है लेकिन ब्राइट डार्क नहीं दिख पाता। क्लियर, ब्राइट, डार्क के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। इंटरफेरेंस तो हमेशा होता। इंटरफेरेंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेव्स। अब जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था, अगर मान लो इतना बड़ा और दूसरा इतने बड़ा, मिनिमा नहीं देख सकते, मैक्स मिनिमम मिलेगा लेकिन 0 नहीं मिल सकता। और इंटरफेरेंस तो हर कंडीशन में होता है, लेकिन क्लियर, ब्राइट, डार्क के लिए कोहेरेंट होना जरूरी है। कोहेरेंट तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है क्या? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। नहीं, ये कोहेरेंट का जरूर है कि ये लैब में ही पॉसिबल है, लेकिन डेली लाइफ में जहाँ कहाँ देख सकते हो, डेली लाइफ में सोप बबल पे देखोगे, ये आयली सरफेस पे देखोगे, ये इंटरफेरेंस, चूंकि ये भी तो नेचुरल फेनोमेना है, नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी स्टडी कौन करेगा? फिजिक्स ही तो करेगी। आखिर में अगर उसको क्या करोगे? मां सोप बबल पे जो कलर्ड फ्रिंजेस बनती हैं, कभी सोचे हो क्या होता है? नहीं, जैसे सोप बबल पे कलर्ड फ्रिंजेस बनती है, बचपन से देखते आ रहे हैं, वो क्या होता है, कभी सोचे हो? तो अगर नहीं सोचे हो तो फिजिक्स उस पर भी सोचती है ना। कोई इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण 7 कलर्स की कलर्ड फ्रिंजेज एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक होता है तो क्लियर, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज बनती है। मोनोक्रोमेटिक में सिंगल वेवलेंथ। हाँ, ये भी ध्यान में रखना, ये जो व्हाइट लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। लेजर बीम हाँ मोनोक्रोमेटिक होती है क्योंकि सिंगल वेवलेंथ।
और ये जो व्हाइट लाइट होती है इसमें 7 कलर्स होते हैं। ये जब इसका जब इंटरफेरेंस होगा तो 7 कलर की ब्राइट डार्क बनेगी, लेकिन जो 7 कलर की ब्राइट डार्क बनेगी तो दोनों ओवरलैप करके क्लियर ब्राइट डार्क हम नहीं देख पाते।